ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੜ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਈਡੀ ਉੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਫੇਵਰੇਟ 313 ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫੇਵਰਟ 313 ਰਹਿ ਗਈ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम ये गल है जे अस्सी ना आईए तो कोई बंदा बराड़ ही नहीं आंदे करे कोई रौनक रौनक। सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਬੁਣ ਮਰਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ। वाह ਨਹੀਂ ਬੁਣ। वाह क्या बात। जी मैनू मसीह मऊद समझ लिया है। मैं मसीह मऊद नहीं जे है। ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ना ਆਇਆ यार क्यों भेजा क्यों ना यार है गलत गल। ब्रॉड है थोड़ा या मुफ्ती साहब दोबारा नहीं, नहीं, मैनू different ना थोड़ा यार। गलत फहमी उन्होंने हो गई है कि मैं मसीह मऊद हाँ मिर्जा कादियानी है ते मैं उन्होंने उधर वजाहत ते कर दिया ना कि मैं वो नहीं है। हाँ जी मुफ्ती साहब। जी साहिल गिल भाई। हाँ जी मुफ्ती साहब। जनाब मैं मसीह मऊद नहीं है जनाब। ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕੌਣ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। आ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। सही है सही है भाई। अच्छा यार अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब मादरत मुर्शिदा मादरत में गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार की आ जा कोई कट रहे है की होया यार ना यार बंदे ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੇ ਖਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦਾ ਸਿਵਾਏ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਵਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਏ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਗਾਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾੜ ਲਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਵੇ ਦਰਦ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਏ ਆਖਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਲੇकुम सलाम। वलीद भाई जरा मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है आमिर भाई। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਹੋ
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਆਹੋ ਤੇ ਘਰੂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਨਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਸ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਸਪਰੀ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लब्बैक लब्बैक। ਔਖੇ ਨਾਮ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਆਨੀ। ਉਹ ਲਿਖੋ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਥੇ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੀ? नहीं, अपना थोड़ी तबलीग कर रहा हूँ ना, वो बालमुखी लाल बेगी की, अपने किबला शाह साहब। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। हाँ अच्छा जी, फरमाओ जी कियानी साहब। बेशक जी, बस जी वो अपना एक अपना थोड़ा सा, मैं कल से थोड़ा सा सुना रहा हूँ इनको कि ये जो लाल बेगी है बालमुखी है, कि मिर्जा कादियानी एक सच्चा पक्का पुराना, यानी कि अपने बड़े बड़े पुराने जमाने से एक काफिर था, हिंदू था, बालमुखी था, लाल बेगी था, और इसी तरह वो मर गया। अब देखे ना कि वो एक दफा वो कहता है कि जब मैं उधर नौकरी कर रहा था सियालकोट में, तो मैंने देखा कि मेरा बाप जो है ना वो बीमार है, और मैंने फौरी तौर पर अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया इस बहुत सी, यानी कि बहुत घटिया किस्म की नौकरी से। और मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा बाप जो है ना उसको दस्तों पेशिश की बीमारी लगी हुई है, और वो बड़ा जो है ना अच्छा कियानी साहब, एक मिनट जरा थोड़ा सा रुकिएगा। जितनी देर बात हो रही है कियानी साहब कर रहे हैं, तो उतनी देर कोई कादियानी कॉल डाल लो भाई, आ जाओ, कोई तबलीग कर लो, कोई तबलीग कर लो, कोई तबलीग कर लो कादियानियों। और ये नीचे जनाब बैठे हैं मौला बस साहब, तो इनसे भी मैं कहता हूँ मौला बस साहब आइए, तशरीफ़ लाइए, कोई बात करिए, कोई तबलीग करिए। और एक बात यहाँ पूछनी है मैंने कि मिर्ज़ा साहब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 407 के ऊपर लिखते हैं कि खुदा का कलाम इस कदर मुझ पर नाज़ल हुआ है कि अगर वो तमाम लिखा जाए तो 20 जुज़ से कम नहीं होगा। सवाल यहाँ पर ये है कि आया वो जो 20 जुज़ों वाला, 20 सपारों वाला मिर्ज़ा जी का जो खुदाई कलाम, आसमानी कलाम और आसमानी वही थी जो, तो वो मजमुआ तैयार हो गया है कि नहीं हुआ? ऐसा मजमुआ कि जिसके 20 सपारे बनते हों और वो खुदा की वही हो, उसके अंदर खुदा का कलाम, और वो मिर्ज़ा जी के ऊपर नाज़िल हुआ था। ये मेरा सवाल है। अगर तो वो 20 जुज़ों वाला खुदा का कलाम जो कि मिर्ज़े कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ था वो तैयार हो गया है, तो वो मुझे चाहिए भाई। ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो अभी तक तुम लोगों ने तैयार नहीं किया, जो मिर्ज़े कादियानी के ऊपर खुदा की तरफ से वही नाज़िल होती थी, तो वो वही किधर चली गई है? वो खुदा का कलाम जो मिर्ज़े पे नाज़िल हुआ, यकीनी सी बात है जो नबी के ऊपर खुदा की तरफ से वही नाज़िल होती है, वो शरीयत होती है, वो कौम के लिए होती है, वो इंसानों की तालीम और तरबियत के लिए होती है। तो वो अगर कौम तक नहीं पहुंची तो ये तो फिर खियानत की है मिर्ज़ा कादियानी ने, या तुम्हारी जमात ने। ये भी फैसला करके बताओ कि ये खियानत मिर्ज़े ने की है या तुम लोगों ने की है। ये गलती किससे हुई है? क्योंकि खुदा की वही ज़ाया कर दी तुम लोगों ने। तो ये हमारा सवाल है भाई, ये मौला बस साहब देंगे जवाब इसका, आएंगे बड़ी तफसील से जवाब देंगे। वो हमें बताएंगे कि ये 20 सपारों वाला जो कादियानियों का कुरान तो नहीं इसको कह सकते, कुरान तो चूंकि वो गीता है इसका नाम,
وہ قرآن تو چلو چوتھی رامائن ہے۔ کتاب ہے اللہ کی اور آخری کتاب ہے مسلمانوں کے نزدیک، لیکن یہ جو 5ویں کتاب ہے الہامی، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ ویسے تو تذکرہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن اس کے 20 سپارے نہیں ہیں، وہ تو صرف سمجھ لو ایک ہی سپارہ ہے، وہ ابھی تک ایک سپارہ ہے، تو بقایا 19 سپارے کدھر؟ تو یہ سارے سوالات ہے، کوئی قادیانی ہے تو بھائی بتائے جی، کر لیں بات. کیا نہیں صاحب میں نے آپ کی بات کاٹی تھی، معذرت. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. تو وہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے اپنا لال بیگ بالمکھی، اگر کسی کو کوئی شک ہو رہا تو آپ خود جو ہے نا دیکھ لیں کہ لکھیں اپنا نا کہیں کسی جگہ بھی لکھیں کہ اسپرچل لیڈر آف سویپر آف قادیان، یا ہسٹری آف بالمک لکھیں، یا ہسٹری آف چوڑا مذہب جو ہے وہ لکھیں، آپ کو سارے کا سارا مل جائے گا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے، کوئی میوٹ کرے گا، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ولید بھائی، ولید موجود؟ جی 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 جی. اچھا یار، ایک تے ہے کہ اپنے نام یا تے اردو دے وچ کر لو، جے انگلش چی کرنا جے تے پھر ولید محمد کر لو، کیونکہ او نا اے محمد چونکہ تے سپیلنگ لمبے نے تے او نام ہی نہیں پڑھیا جاندا کہ بندے دا نام کی ہے. تے اگر محمد لکھنا ہے ٹھیک ہے، لیکن انہوں پھر یا تے آخر تے کر لو، یا پھر اردو چ محمد ولید کرو گے نا تے او چھوٹا جا نظر آ جاندا ہوندا ہے. اسکرین تے دیکھو کہ تھلے صاف لکھیا پورا نام، اے جڑی پوسٹ والی بنی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر بھائی اگر جان دی مان چاہواں تے میرا بھی ایک سوال ہے وے، بلکہ سوالاں چ شاہ صاحب دی آخری گل سوال چ 2 سوال نکل آئے ہیں. پپو صاحب مجھے بات کرنے دینا تو پھر آپ میرے پیارے صاحب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوسچن شاہ صاحب کی صحبت کبھی کبھی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، تو مجھے بھی کچھ ان سے سیکھنے کا موقع دیا جاوے. مجھے بس بات ختم کر رہے تھے، پھر آپ فرمانا میرے پیارے جو کچھ آپ کہیں گے. آئی لو یو، آئی ایم ود یو، آئی ول ڈو واٹ آئی ول. تو وہ بات یہ ہے نا میرے پیارے کہ جب مرزا غلام سندھی قادیانی نے استعفیٰ دے دیا تو وہ واپس آ گیا، تو اس کا باپ بیمار تھا، پھر وہ اس کا باپ مر گیا، تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ادھر میرے باپ کا مرنا تھا اور ادھر میرے اوپر بارش شروع ہونی شروع ہوگی وہیوں کی علامات کی جناب علی. تو ایک طرف سے میرا تھوڑا سا نقصان ہوا اور دوسری طرف سے میرا فائدہ ہی فائدہ ہونا شروع ہو گیا نا. اور اس کے جو بڑا تھا نا، اس کا جو لال بیگی کا جو پیشوا تھا مرزا امام الدین، جو اس کا فرسٹ کزن تھا، اس کے چچے کا بچہ تھا، تو اس نے اس کو خط لکھا. خط جو ہے نا بڑا ڈیٹیل کا ہے، برطانوی سرکار کی جو ہے نا پوسٹ کارڈ کے اوپر یہ خط لکھا ہوا ہے. اس پر لکھا ہوا ہے مرزا غلام سندھی ڈپٹی کمشنر آفس ڈسٹرکٹ سیالکوٹ پنجاب، اردلی اس کی پوزیشن تھی. تو دوسری طرف لکھا ہوا ہے چمی غلام سندھی. آگے ان کا جو دعا سلام ہے نا وہ لکھا ہوا ہے ایسے، بالمک شافی، بالمک کافی، بالمک معافی. اس کے نیچے تیسرا پیراگراف ہے، لکھا ہے کہ بھیجو مجھے 1 پاؤ خالص افیم کا. آگے لکھا ہوا ہے کہ اپنے پیشوا امام دین کا سندیسہ پلے باندھ لو، اپنے دین پر رہو، مسلح ہونے کا فریب نہ کرو، کافر نہ بنو. نیچے لکھا ہوا ہے لال بیگی ساتھی مسیتا. تو اب بات یہ ہے میرے پیارے، یعنی صاحب حوالہ دوبارہ لکھوائیں، کون سی کتاب ہے؟ میں نے بھی مجھے بھی حوالہ چاہیے. یہ پوسٹ کارڈ ہے، اس وقت یہ نئے پوسٹ کارڈ شروع ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، جو برطانیہ کی ایک کمپنی تھی جو بنائی تھی انہوں نے یہاں پر تجارت کے لیے مغل سلطنت کے ساتھ. تو اس مطلب یہ کہاں سے ملے گا جو کارڈ کہہ رہے ہیں آپ، جہاں سے یہ پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کوئی حوالہ تو جی یہ کارڈ ہے، کارڈ اٹ سیلف ہے. تو یہ آپ کو ادھر سے، یہ میرے اوپر بھی میں نے اسی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ اس کی بیک سائڈ کی تصویر ہے. اس کی 2 طرفیں ہیں، ایک جہاں پر پتہ لکھا ہے یار. یہ ولید بھائی ان کی سکرین بڑی کرے ذرا، کیا ہے یہ؟ تو یہ جو ہے نا، اب یہ ہے کہ یہاں پر مرزا غلام سندھی صاحب نے کہیں بھی استعفیٰ نہیں دیا کہ کیانی صاحب رکیں تو کیانی صاحب رک لو. شاہ صاحب دا بھی سوال سن لو، تسی انہاں نوں حوالہ دیو. اے واسطے تے کارڈ میں تانوں کنے چاہیے نے، میں بنا دینا کارڈ ٹھپے لا کے. انہاں نوں کیانی صاحب، شاہ صاحب حوالے تو بغیر گل نہیں کردے. یار تو چپ کر، کٹ کھا لے گا تو بھائی. نہیں یہ اس وقت جی اس وقت آپ موجود نہیں تھے. جی فرمائیں. یعنی صاحب بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی فائل کے اندر یہ چیزیں لگانی ہوتی ہیں، تو یہ بڑی زبردست بات آپ بتا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ملے گا؟
ये मेरे पास इसकी तस्वीर है, ये मिला है हमें मिर्जे के घर से, लंदन से। और जिन बंदों ने ये पेश किया है ना, वो सारे के सारे, सारा खानदान ही मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे शाह साहब हैं, होली स्पिरिट साहब, उन्होंने ये जो है ना, उनको उस बंदे ने ये पेश किया है। और इसकी कापी जो है ना, वो किबला शाह साहब के पास है लंदन में। और इसकी जो तस्वीर है वो मेरे पास भी है, और बहुत सारे मुसलमानों के पास है इसकी जनाब। तो अर्ज ये थी कि मिर्जा कादियानी जो गुलाम सुंदी, जो उसका असली नाम है, उसने कभी भी इस्तीफा नहीं दिया कि मैं मिर्जा इमामुद्दीन का ये जो कल्ट है, क्या उसका नाम रखा था, कौम लाल बेगियां, उससे मैं इस्तीफा दे रहा हूं या उससे मैं अपने आप को खारिज कर रहा हूं। तो यहां पर उसने उसको कहा था कि अगर तुम ये अपना काम बंद नहीं ना करोगे, ये तुमने जो ये मुसला होने का जो फरेब शुरू किया हुआ है और काफिर बनना चाहते हो, तो मैं तुझको अपनी जमात से खारिज कर दूंगा। लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिलता। अपने लाल बेगी साहब के मानने वालों, हमारा आपसे सवाल है कि हमें ना कोई इसका प्रूफ दे कि यहाँ पर मिर्जा कादियानी ने छोड़ दिया था लाल बेगी कौम को, और अपने जो बाबा था उसका मिर्जा इमाम। बात ये है ना कि कादियानी तो तब जवाब देंगे कि जब उनकी किसी किताब में ये हो या वो उस चीज को मानते हों, तो फिर बात समझ आती है। तो एक शख्स की गवाही के ऊपर तो हुक्म कोई भी नहीं ना लगता, समझ रहे हैं क्या? तो एक चीज एक शख्स, जी, ये एक शख्स नहीं है, ये पूरी तारीख है, इसके पीछे पूरी तारीख है। वो ऐसा है कैनी साहब, अभी व्हाट्सएप पे जरा आप मुझे सेंड कर सकते हैं, तो ताकि मैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर खुद भी देख लूं और कौम को भी दिखा दूं, क्योंकि अभी आपका ना वो नजर नहीं आ रहा, बहुत छोटे छोटे अल्फाज। ठीक हो गया, मैं कोशिश करता हूँ किबला आपको इसके लिए वापस जाना पड़ेगा व्हाट्सएप के ऊपर, और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करेंगे ना, तो फिर मैं यहाँ लोगों को भी दिखा दूंगा और फिर अपने पास सेव भी कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो है ठीक है, मैं करता हूँ, आप करें, बात करें, तो मैं इसका करता हूँ। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये एक हकीकत है। मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पा रहा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी सीता रूम में जा रहे हैं कि रावण रूम में या अपने रामदे के रूम में, कौन से रूम में जा रहे हैं मेरे प्यारे? आई लव यू। मैं 2 नंबर बाबू वाले रूम में जा रहा हूँ, 2 नंबर बाबू खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, मरबियों के लिए एक मौत का निशान हूँ मैं, नायक नहीं। क्यों मरबियो, ऊपर आओ ना जरा मेरे प्यारो, तुमसे कुछ बात करें जी। करें जी बात। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या नहीं साहब, ये जरा भूलना जाइएगा, ये भेज दीजिएगा लाजमी। अच्छा, तो है भाई कोई कादियानी, खुदा का कलाम इस कदर मुझ पर नाजल हुआ है कि अगर वो तमाम लिखा जाए, मतलब ये कि ये मिर्जे को भी नहीं पता कि मैंने इसको मुरतब करना है कि नहीं। और इस चीज से तो ये भी पता चल रहा है कि मिर्जे के ऊपर बाज वहियां नाज़िल होती थी तो वो लिखता नहीं होता था। इस अगर से तो ये भी पता चल रहा है। तो ये वो फिर मिर्जे कादियानी ने पूरी वहियां लोगों को नहीं सिखाई, ये तो फिर चोर भी साबित हो गया मिर्जा कादियानी, कि उसने अपने ही इल्हाम को चोरी भी कर लिया है। तो ये सारे सवालात हैं, कोई कादियानी बताओ भाई, बड़ा ये जो है ना मसला बना हुआ है, और इसके ऊपर रोशनी डालो भाई कादियानी। ये कादियानी मुरब्बी साहब को आए हैं GEM साहब, वो कह रहे हैं कि वो बरकत बीबी रंडी को जो मिर्जा जी ने केले दिए थे ना, उसके ऊपर बात करें। और नहीं जी, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अभी जो है ना, अभी वो केलों के ऊपर बरकत बीबी के जो केले थे उस पर बात नहीं करनी, अभी तो इसकी पहली बात करनी। खुदा का कलाम इस कदर मुझ पर नाज़िल हुआ है कि अगर वो तमाम लिखा जाए तो 20 जुज़ से कम नहीं होगा। और यहाँ पर चलो फिर एक और सवाल भी हम कर लेते हैं जनाब।
یہ جو حوالہ ہے نا یہ حقیقت الوحی کا ہے اور یہ روحانی خزائن جلد 22 کے اندر حقیقت الوحی ہے. اور یہاں پر مرزا قادیانی کے نشانات اس نے کوٹ کیے ہیں. اور یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 پر پہلا نشان ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہم محض بطور نمونہ کے 140 نشان ان میں سے لکھتے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے میں 140 نشان آپ لوگوں کو یہاں ابھی لکھنے لگا ہوں. یہ مرزا نے وعدہ کر لیا لوگوں سے. مرزا قادیانی نشان اپنے لکھنے شروع ہوا. نشان نمبر 1، نشان نمبر 2، نشان نمبر 3، اور جدوں پہنچے نا نشان نمبر 140 تے، کیونکہ لکھنے تے انہیں 140 سن، جو بھول جاندہ ہے مرزا قادیانی. مرزا بھول گیا ہے کہ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا تو میں نے 140 نشان لکھنے ہیں. مرزا جی اگے ٹور پہ جناب، منہ چک لیا مرزا جی نے. نشان نمبر 141، نشان نمبر 142، نشان نمبر 143، نشان نمبر 144 تے جناب نشان نمبر 187 تک پہنچ گئے مرزا جی. اور یہ نشان نمبر 187 صفحہ نمبر 400 کے اوپر ہے. اور یہ پتہ ہے کون سا نشان ہے؟ یہ نشان ہے جی میرے بڑے بھائی جن کا نام مرزا غلام قادر تھا، کچھ مدت تک بیمار رہے اور جس بیماری سے اس بیماری سے آخر کار ان کا انتقال ہو گیا. ہیلو جی، بھرا مر گیا سنوں تو وہ بھی نشان ہو گیا جی. اب یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے دجل بیانی کی. اس نے تو نشان بیان کرنے تھے 140 لیکن اس نے بیان کر دیے 187، تو یہ تو دجل ہے. دوسرا یہ ٹوٹل 187 جو نشان اس نے بیان کیے ہیں نا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے مرنے مرانے کے اور مرزا قادیانی کی مقد سے خون نکلنے کے معجزات کے علاوہ، نشانوں کے علاوہ کوئی نشان ہی نہیں آپ کو ملے. فلاں مر گیا، فلاں رڑ گیا، فلاں دا نک ڈنگا ہو گیا، فلاں سڑ کے مریا، ریڑ کے مریا، ڈگ کے مریا، ڈگ کے مریا. کوئی خیر دی خبر کوئی مرزا جی کو کوئی نہیں ہے. بھئی آؤ اے مر جو قادیانیوں، کوئی نشان تے ہی گل کر لو، مرزائیو مر جو آؤ تے صحیح یار. میں لبنا پہ کوئی قادیانی لبے، لبدے ہی نہیں. قادیانیوں اور ٹوٹ پینے ہو اور مرگی پینے ہو اور زلزلہ پینے ہو. اے پتر ہے سارے نشان جے مرزے نے بھی انجی کیا جے. پڑھ کے ویلو نشان اور ٹوٹ پینے ہیں اور مرگی پینے ہیں اور تون پینے ہیں تے زلزلہ پینے ہیں. نشان نمبر 12 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی زلزلوں اور طاعون کے بارے میں ہے، لہذا وہ پیشگوئی میرے بارے میں ہے، وہ میرا نشان. یہ کیڑی ہے جی؟ یہ کتنے لکھی ہے جی؟ یار کمال ہی ہو گئی ہے یار، کمال ہی ہو گئی ہے. واللہ تسی یہ پڑھ کے ویکھ لو ہے نشان تے تہاڈا دل کرنا ہے کہ مرزا تو میرے کول ہوندا نا تینوں میں پا لینا سی لمے. چلو بھائی کرو بھائی بات کرو یار، گل ٹورو کوئی اگے. ملک صاحب بیٹھے نے، ملک صاحب نو میں ہوں لکھیا ہے. مفتی صاحب میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣੀ. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਚ ਵਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਡ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ. ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਇਹ ਇਨ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਨ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ F ਦਬਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸਫਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। अच्छा ए देखो, लो भाई सारे तवज्जो से सुनना कि किताब को यूनिकोड करने का तरीका क्या है, वो तरीका बताने लगा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अच्छा भाई ये देखो गूगल क्रोम के ऊपर मैं आ गया हूँ, ये कोने में ही गूगल क्रोम के ये जो नुक्ते होते हैं यहाँ पे क्लिक करो ना तो आ जाता है ड्राइव। ये ड्राइव के ऊपर जाना है। अब ये ड्राइव आपके पास हो सकता है खाली हो, तो मेरी तो यहाँ पे कुछ किताबें अपलोड हुई हैं, लेकिन बहरहाल आपने करना ये है कि कोई एक सफ़ा जिसको आप यूनिकोड करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए मिर्जे की किताब है खुली हुई है, तो ये एक सफ़ा है, इसको मैं उठा के यहाँ पे फेंकता हूँ। जो ही यहाँ पे फेंका है तो ये अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया है जनाब, ठीक है। अच्छा मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो वो फिर यहाँ नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये कोने में ये वाला, ये माउस जिसके ऊपर है ये नज़र आ रहा है, ये वाला सफ़ा। अब इस सफ़े के इधर ये जो 3 नुक्ते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ओपन विद के ऊपर जाके मैंने ये गूगल डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ये गूगल डॉक्स। यहाँ पे जो ही मैंने क्लिक किया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखो ये पूरा सफ़ा ये नीचे यूनिकोड हो गया, देख रहे हैं, पूरा सफ़ा उसने टाइप कर दिए। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये देखिए राइट क्लिक करके मैंने कॉपी किया और मैं इन पेज के ऊपर जाता हूँ और ये इन पेज मैं नई फाइल खोल लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए वो चीज़ यहाँ पे आ गई, ये देख रहे हैं जी जी जी। तो ये है यूनिकोड। इस तरीके से मैंने एक एक सफ़े को करके ना तो पूरी सीरतुल मेहदी को मैंने यूनिकोड बनाया हुआ है। और ये अभी इत्तेफाक से वो ही खुली हुई थी, ये जो मैंने मिनिमाइज किया था ना, बल्कि ये खुली हुई है मेरे सामने तज़किरा, चलो वो ही दिखा, ये तज़किरा, ये भी ऐसे ही की है, ये पूरी तज़किरा खुली हुई है। तो ऐसे मैंने बड़ी किताबों को यूनिकोड किया हुआ है जी। हाँ मैं पूछ रहा था कि पूरी किताब ऐसी हो जाती कि एक एक सफ़ा करके करना पड़ता है? एक एक सफ़ा ही है, वैसे पूरी का तो अभी तक मेरे भाई कोई जुगाड़ नहीं मिला। मेरे बेटे ने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया है, अच्छा पूरी किताब को ही वो कर देगा आपको। बल्ले बल्ले। अच्छा ये है पूरी किताब अगर तो वर्ड के अंदर बनी हो ना तो वो तो यूनिकोड हो जाती है, लेकिन अगर कोई तस्वीरें जोड़ी हुई हैं बिल फर्ज, यानी तस्वीरें खींच के PDF बनाई थी या मतलब इन पेज से बनाई गई है, तो अभी तक मैंने बड़ी रिसर्च की है, मुझे कोई ऐसी नहीं मिला। अगर तो आपको पता है तो वो लाजमी मुझे बताएं। हाँ जी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो पूरी किताब को करने का तरीका है और हैं बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं, स्कैन्स को उसने किया है। मैंने ना एक लिस्ट से 400 सफ़े की वो समझ लें कि पास जिसमें 75 किताबों के हवाले थे, तो वो मैंने अपने बेटे को कहा यार मैं ये तलाश करना पड़ता, मुझे ये सारी देखनी पड़ती है।
तो मुझे थोड़ी मदद करो, वो माहिर है इसमें, तो उसने मुझे वो एक सॉफ्टवेयर निकाल के दिया है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल तो आप बिल्कुल उसमें आमिर पूरी भाई, किताब डालेंगे, 400 सफ़े की किताब अगर PDF होगी ना स्कैन्स वाली, तो उस पर वो 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हो आप ऐसा करें ना, सारे काम छोड़ के मेहरबानी करें व्हाट्सएप पे अभी, बाद में ये निकल ना जाए। ये अभी सरे दस्त मैं अरे ड्राइव बस- कर मतलब गड्डी बाजा नहीं, मैं ड्राइव कर अच्छा गड्डी का बात जा रही है, ठीक है, चलो किनारे ते ला मैं के ड्राइव कर लाजमी करें। मैं पहुंच के इंशाल्लाह पहुंचने वाला हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, मेरा ख्याल है कि मोबाइल ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ 400 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪੂਰੀ ਫਹਿਰਿਸਤ 400 सफ़े ਦੀ किताब जो ਕੱਢ के देता है। ਬੱਲੇ सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? यार ज़बानी अभी नहीं ना याद होगा, देखिए 1 सेकंड होल्ड रखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। नाम बताएं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है यार भाई वलीद, बड़ी हजार सफे तक का तो मुझे पता है कि 1000 सफा हो सकता है सर्चेबल। बड़ी यानी यूनिकोड। हाँ जी सर्चेबल हो जाता है, 1000 सफे तक का मुझे पता है। इसमें वो है नहीं ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ यार, शेयर भी करीदा ਹੁੰਦਾ है ना, दसीदा ਹੁੰਦਾ है। tools.pdf, आगे वो उसका नाम है किताब का, tools.org/an/ocr। नहीं इंज नहीं, वो लिंक सेंड करो जी, इंज नहीं समझ, हाँ मैं लिंक सेंड करता हूँ, लेकिन मैं वलीद भाई के लिए इंज नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ। tools.pdf है ना, tools.pdf है ना मेरे भाई, बस सिंपल छोटा नाम तो यही है ना, tools.pdf। नहीं, PDF तो मेरी किताब का नाम था, PDF 24, वो टूल्स के आगे हाँ लग गई समझ है, tools.pdf24.org। हाँ है बे? हाँ जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ PDF to text ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। PDF OCR recognized text easy online CSS ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਲੀਦ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो मुफ्ती साहब, तो मैं व्हाट्सएप से सेंड करता हूँ। अच्छा जी, देख लो, अगर ना हो या फिर तो वीडियो में बच्चे ने कर लिया ना वेबसाइट ते होई है। अच्छा PDF OCR ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, onlineocr.net। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਵਲੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। OCR ही है भाई। ਹਾਂਜੀ ਆਮਿਰ ਸਾਰੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ OCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਚੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਰਚੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਚ। ਹਾਂ ਉਹ OCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਸਰਚੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ
मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की किताब है फैसला मिर्जा। चलो मैं इनू करन लगा, हुणे ट्राई कर लेंगे। अच्छा यार थल्ले ना ऑप्शन आ गई ने, फैसला मिर्जा ते मौलाना सनाउल्लाह हाँ जी उन्होंने ही है ना, ते थल्ले ऑप्शन आ गई ने रिमूव बैकग्राउंड, क्लीन पेज, रोटेट पेज, फोर्स OCR। वलीद लगता है ये क्लिक होएगा है फोर्स OCR। हाँ जी OCR ते करना हो। अच्छा अगला वे के डेस्क वे पेजेस, ये ते करना है क्लिक? नहीं बस OCR करके बस कर दो। अच्छा बस स्टार्ट OCR ठीक। हाँ जी अच्छा स्टार्ट लैंग्वेज भी उन्हें पूछी है, हुण लैंग्वेज विच असीं उर्दू पाउण लगे हैं। किन्ने सफे दी किताब है? छोटी किताब को ए ते वे तकरीबन ये तो छोटी जी हुई है, 1 मिनट 44 सफे जे। आते 5 मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਕਿਰੋ ਨਿਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਐ ਵੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜ ਲੇਗਾ। ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ठीक बिस्मिल्लाह यार है अगर हो जाए ना ते चस बड़ी आ रही है वल्ला। मैं ते रह गया यकीन जानो कई दिन लगे जे मेरे एक किताब नू यूनिकोड करन लगे रातां जागदा रहा मैं। ये ते काम ही बड़ा है, अगर हो जाए ते ओए होए चस आ जानी। ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। हाँ जी बिल्कुल है। जी अपना मुफ्ती साहब भेज दिया आपको, वो मैंने अपने जो है उसके अच्छा दोनों जी। तरफ के स्कैन। वैसे क्या नहीं साहब अजे वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये मेरा ये मानना है कि ये चूंकि था ही हिंदू तो ये अपनी गीता की क्यों नहीं करते, अपनी रामायण की बात क्यों नहीं करते, ये मुफ्त में हमारे साथ पढ़ा कर लगते। तो हाँ जी इनको कुछ करना चाहिए ना कि हिंदू भी नहीं था ये, पता नहीं कौन क्या बदबला थी, कुछ भी नहीं था। हिंदुओं का तो फिर भी कोई एक मजहब होता है, इसका तो कुछ भी नहीं था। ये जो है ना शाह साहब जब इनका आप देखते हैं ना पूरा पिरामिड, तो जूते के ना पाँव के नीचे होती है एक चीज, उसको वो चूड़ा मजहब कहते हैं, लाल बेग खाकसार खाकरो। और उसके बाद है ना ये उनके अवतार हैं डिफरेंट किस्म के ना, जो 10वां अवतार है ना वो है बांदर, जिसको वो हनुमान जी कहते हैं ना, उनके भगवान है, उड़ते हुए भगवान है। वो कई लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के आगे उन्होंने लगाया होता है। और जो 10वां अवतार है ना वो है बारला, जिसको हम सूअर भी कहते हैं। तो ये जो मिर्ज़ा गुलाम सुंदी साहब है ना, ये वो जो है ना अपने 11वें जो है ना उनके अवतार हैं, अपने कृष्ण जी जो महाराज कहते हैं, और अवतार और ये सारे के सारे ना, तो ये इनका पूरे का पूरा है और उसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है। और ये लोग बड़े ही तरीके के साथ जासूसी किया करते थे और बड़ा इनका जो है ना, इनके बंदे 1920 में सऊदीया तक पहुंच गए थे और लॉरेंस ऑफ अरेबिया को ये रिपोर्ट किया करते थे। इनके इन्होंने बड़े काम डाले हुए हैं किबला शाह साहब। कैनी साहब तुसी जारी रखो, गुफ्तगू जारी रखो, कुछ होर नवी कोई गल पेश करो नाल, ताकि सुनन वेखण वाले नूं पता चले। जी जी। और जब हम देखते हैं ना इसका, अगर आप ये देखें तो ये जो एक किताब है इनकी, तो उस पर इन्होंने अपनी हर जो इन्होंने काम डाला है ना, वो इन्होंने बड़े खुले तरीके नहीं साहब एक मिनट मनु वेखो याद एकदम आ गया है।
ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਿਆਰੇ ਰਸਾਲਤ, ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਲਾ ਤੁਨ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਆਰੇ ਰਸਾਲਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਲਾਹੌਰੀਅਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸੰਨਫੀਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੰਨਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਹਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨੂਰੇ ਅਫਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। अब ये एक इनकी किताब है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इनकी पॉलिटिकल क्या इन्होंने वो किए हैं, अपनी जो जासूसियाँ की हैं। तो लिखा है कि 1899 में मिर्ज़े ने प्लान किया कि अपने मिशन भेजने हैं एशिया को, और जासूसी के लिए ना, इसको कहता है रिकॉनिसेंस वर्क। तो उसने मौलवी कुतुबुद्दीन मियाँ जमालुद्दीन मिर्ज़ा खुदा बख्श, ये इन बंदों को इसने भेजा, और ये इनकी यानी कि ये जीसस क्राइस्ट की फ़लस्तीन और इंडिया इधर वो ढूंढने के लिए गए। कहता है 4 अक्टूबर को इसने प्रपोज़ किया ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम सुद्दी ने कि हमको ना कादियान में एक मीटिंग बुलानी चाहिए, कॉन्फ्रेंस, और ताकि हम इन लोगों को ना खुद अलविदा कह सकें, क्योंकि ये एक नोबल मिशन पर जा रहे हैं, बड़े मुक़द्दस मिशन पर जा रहे हैं। फिर ये हुआ कि ये जा नहीं सके, लेकिन ये मुख्तलिफ मौक़ात पर ये अफ़गानिस्तान और जनूब वस्ती एशिया में के इलाक़ों में ये चले गए, और वहाँ पर इन्होंने जाकर ये अपने काम डाले और बरतानवी सरकार की मदद की, और इस तरह कादियानी इंटेलिजेंस वर्कर काबुल में पहुँचे, और उसने वहाँ पर जो क्रक्स थे यानी कि जो मामलात थे वो पहुँचाए। तो ये पूरी एक किताब है, तो मैंने इसको काफ़ी इसके पेज सेव किए हुए हैं, तो मैं इसकी भी आपको एक पिक्चर बनाकर भेज देता हूँ ताकि आप भी इसको ना, लेकिन ये है अंग्रेज़ी में। जी ज़रूर किया साहब। तो बात ये है कि इसने बड़े बड़े काम डाले हुए हैं किबला शाह साहब, कि ये बहुत ही को खबीस नफ्स ये लोग थे, और इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, यानी कि मुग़ल जो सल्तनत थी सबको इन्होंने तबाह व बर्बाद किया, बल्कि ये तो अरब तक चले गए, और इन्होंने जद्दा में भी अपना एक दफ्तर बनाया, वो आगे आएगा। फिर ये जो हमारी बड़ी ये यूनिवर्सिटी थी अल अज़हर, ये वहाँ तक भी पहुँच गए। तो आस्ता आस्ता ना हम जो जितने भी वो पत्थर हैं ना उनको उल्टा करना, इनको नीचे से नकार रहे हैं, लेकिन ये इधर आए तो हम इनसे बात करें ना कि भाई साहब ये आपकी बातें हैं, ज़रा बताओ ना ये तुमने क्यों ये हमारे ऊपर तुमने ये वार किए हैं। और उसके बाद ये है कि ये बेसिकली जो है ना
हैं तो वो लाल बेगी लोग, ये कौम लाल बेगियों के साथ इनका तल्लक है, और ये भी उसी तरह पूजा करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स की, यानी कि नाव से 10 उंगली नीचे, जिस तरह वो दूसरे लोग अपने की करते हैं। और ये फिर वो ये कहते हैं कि ये हमारी जो ये टट्टी पेशाब है ये स्पिरिचुअल है, ये भी रूहानी है। तो ये इनकी बातें हैं। तो मरबियों का काम है कि इधर तशरीफ़ लाएं, आपको चंदा भी कोई नहीं देगा, जो दिया लोगों से लिया है वो उनको वापस कर दें, सीधे हाथ से कर दें, नहीं तो वो डंडे के ज़ोर पर आपसे वापस ले लेंगे, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं कि आप जो है ना लाल बेगी हैं, आपका तलक चूड़ा मज़हब जो है, ये अपना आस्तानिया आलिया चूड़ा शरीफ वहाँ से है, और आपका जिसको अपना बड़ा मानते हैं मिर्ज़ा गुलाम सुंदी को, वो ख़ुद मरीद था जनाब अली अपने पेशवा जनाब इमामदीन साहब का है जी। ये लोगों को आपने बताया ही नहीं है, और लोगों को आपने गलत पटड़ी पर चढ़ा दिया है, और लोग कंफ्यूज हो गए हैं। हम तो नहीं हुए, लेकिन आपके मानने वाले जो हैं वो कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता चलता कि ये बंदा किस मज़हब का है, और आपने आज तक उनको सच नहीं बताया। तो आप उनको सच बताएं मेरे प्यारे, आप नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे। ये हमारी मजबूरी भी है, और ये हम पर लाजम भी है कि हम हर किसी को सच बताएं सबूतों के साथ। जी किबला। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।